Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in previous video we have learned about the different forms of the business organization. In there we had learned the sole trading concern, joint Hindu family, partnership firm, limited liability partnership, cooperative society and joint stock company. But guys, these all different kinds of the organization will not come in exam except the joint stock company. ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है, इसी एग्जाम में नहीं आएंगे, बट उसके आगे जो भी सेशन रहेगा उनको पढ़ना है. बट आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ना, बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए और आपको पढ़ना ही है. ओके. Now guys, in today's video we are going to discuss about the different types of the companies or what are the kinds of the companies. So now guys, there is the some basis has given according to the companies. Means the companies has bifurcated here according to the basis. Means that you can see on your screen there has the given 5 basis on which the company has divided. Means company क्या की गई, bifurcate की गई है ना. अभी कैसे बाइफरकेट किया उन्होंने, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. अभी इनकॉर्पोरेशन के बेस पे टू कंपनीज है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्स कंपनी. नो ऑन द बेसिस ऑफ number of member or we can see the on the basis of ownership, on the basis of number of member or we can say on the basis of ownership. Means ownership के बेस पे भी they have divided the companies. Now they has the private company, public company and one person company on the basis of number of member. Now third one on the basis of liability of members. Yes, अभी liability पे भी उन्होंने क्या किया है, सॉरी गाइस, लाइबिलिटी पे उन्होंने क्या किया है, 3 कंपनीज डिवाइड की है ऑन द बेसिस ऑफ. मीन्स देयर हैज़ अ लिमिटेड बाय शेयर्स. एक कंपनी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स. सेकेंड वन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड वन अनलिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, सो देयर हैज़ ऑल्सो दे bifurcate the 3 companies on the basis of liability of member. Now fourth one on the basis of control. So in there they have given 2 kinds of the company, holding company and subsidiary company. And the fifth one other types. So there has the 6 kinds of the company, 6 or 7 kinds of the company. You can see the government company, foreign company, dormant company, listed company, small company, associate company, company not for sale. Okay guys, so guys, today we will discuss about the on the basis of incorporation and on the basis of number of member, and remaining 3 we will learn in next lecture. Now guys, first see the kinds of company on the basis of incorporation. इनकॉर्पोरेशन की बेस पे कौन कौन सी कंपनियां हैं. ओके, now there has the, you can see there has the 2 kinds of company. The first one is the statutory company and second one is the registered company. Now guys, what is mean by the statutory. अभी statutory company होती क्या है, means द कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट. ये ऐसी कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू क्या होती है, रजिस्टर होती है या फिर इनकॉर्पोरेट होती है. ओके, इट इज़ नोन एज द स्टैट्यूटरी कंपनी. मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन जो एक्ट होता है वो एक स्पेशल होता है. ओके, मीन्स विच इज रजिस्टर्ड बाय द पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट क्या करती है, एक स्पेशल एक्ट बनाती है इनके लिए. ठीक है ना. सेकंड वन इज़ द रजिस्टर्ड कंपनी. सेकंड वन इज़ द रजिस्टर्ड कंपनी. मतलब ये वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2030. और इसके पहले जो वॉट एवर द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ था, मतलब इसके पहले क्या था, 1956 था. ओके, फिर उसके पहले भी था. सो मीन्स ये जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है ये कौन सी कंपनी होती है, द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. या फिर किसी भी पहले तो 2013 एक्ट के पहले जो भी कंपनी लॉ था उसके थ्रू जो कंपनी रजिस्टर्ड हुए उन कंपनियों को क्या बोला जाएगा, रजिस्टर्ड कंपनी. ना गाइज, फर्स्ट सी इन डिटेल व्हाट इज द स्टैट्यूटरी कंपनी. Yes, now guys, you can see on your screen on the basis of incorporation, statutory company means this is the company. These companies are
इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट मीन्स जैसे मैंने बोला कि ये कंपनी क्या है, ये इनकॉर्पोरेट होती है. इनकॉर्पोरेट मीन्स रजिस्टर्ड होना बाय एनी स्पेशल एक्ट विच इज पास बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव मीन्स बाय पार्लियामेंट. सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव मीन्स सेंट्रल और स्टेट लॉ के एक्ट के थ्रू क्या होती है, कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती हैं. जैसे अभी कौन कौन सी कंपनी है वो, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. दिस ऑल कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय स्पेशल एक्ट विच इज पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट और सेंट्रल legislative. Okay guys, understood what is the meaning of the statutory company? The company is which is incorporated by the special act passed by the central or state legislative, for example the RBI and SBI. Okay, now guys, you can see the second company on the basis of the incorporation, the registered company. Now guys, I told you the registered company is the company which is incorporated by the Companies Act 2030 और any previous company law. इसके पहले जो भी कंपनी लॉ थे उसके थ्रू जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेट होगी, दैट कंपनी इज नोन एज द रजिस्टर्ड कंपनी. द कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. यस, जो कंपनी एक्ट 2013 या फिर इसके पहले की जो भी कंपनी लॉ होता है उसके थ्रू इनकॉर्पोरेट होगी, दैट कंपनी इज नोन एज द रजिस्टर्ड कंपनी. ओके, नाउ गाइज सी द बी पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर. अभी हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके थ्रू टू कंपनीज तो जो हमने पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप पे बेस्ड कितनी कंपनी बाइफरकेट की गई है, देयर हैज द 3 कंपनी हु हैज बाइफरकेट बाय द on the basis of ownership. Now guys, you can see the private company. The first one is the private company. See guys, अभी private company क्या होती है, it is a company which is divided on the basis of the selected people. ये ऐसी कंपनी है which is created और made by the on the basis of selected पीपल में कुछ लोग मिल क्या करते हैं, इस कंपनी को बनाते हैं. एंड दिस टाइप्स ऑफ कंपनी इज नोन एज द प्राइवेट कंपनी. ओके, मीन्स इट इज़ अ कंपनी विच हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन. जो कंपनी होती है इसके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू द पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी के कंपेयर में प्राइवेट कंपनी को थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं. अभी कौन से फील्ड में होते हैं वो हम 1 by 1 देखेंगे. नाउ गाइस, सी ऑन द स्क्रीन Section 268 के अकॉर्डिंग अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एट विच बाय इट्स आर्टिकल. यस, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है. किसमें, इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज एक्ट. ओके गाइज, now guys, see the next page. Yes, the restrict the right of the members of transfer its share if any. Yes guys, अभी देखो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इट्स कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर. मतलब द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, दे हैज़ नो राइट, इनके पास राइट नहीं होता. दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, वो अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी अदर पर्सन को. ओके, तो ये उनको रिस्ट्रिक्शन होता है. सेकंड, थर्ड, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200. यस, द मिनिमम इन प्राइवेट कंपनी देयर हैज़ द मिनिमम मेंबर विल बी 2. कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 2. एंड मैक्सिमम देयर 200 मेंबर. मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम ओनली 200 मेंबर और शेयर होल्डर. मीन्स मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 2 मेंबर्स होने चाहिए
कम से कम कोई भी प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी देयर एंड मैक्सिमम ओनली 200 मेंबर शुड बी देयर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू 1960 एक्ट के थ्रू, अकॉर्डिंग टू ये जो 200 मेंबर किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू 2013 बाय द कंपनी एक्ट, बट अकॉर्डिंग टू 1960 एक्ट के थ्रू द मैक्सिमम लिमिट इज ओनली 50। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 है। कौन से एक्ट के थ्रू, 1960 के। Now guys, the prohibition prohibits at any invitation to the public to subscribe for any securities or deposit of the company. Yes guys, the private company cannot invite public and subscribe share, means the private company cannot issue the prospectus into the public इसमें prospectus नहीं issue करती, means private company cannot issue the prospectus to advertise the कंपनी, अपनी कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर सकती कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है तो आप लोग परचेज करो। नो, द कंपनी ओनली कैन रेज देयर शेयर ओनली फ्रॉम द सिलेक्टेड पीपल, कुछ जान पहचान के लोगों से ही वो क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है। एंड द कंपनी कैन नॉट इशू द प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती कंपनी, किसी भी मतलब कोई भी डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती, और पब्लिक को ये नहीं बोल सकती कि आप आइए हमारे शेयर्स परचेस करिए, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। सो ये क्या है, कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होता है। ओके, मतलब कंपनी ऐसा नहीं कर सकती मीन्स। और इसके अलावा और क्या हो सकता है गाइड, मिनिमम कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल अगर 1 लाख है तो कंपनी, प्राइवेट कंपनी फॉर्म हो सकती है। अगर कंपनी ने दिखा दिया अपना मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, उनको परमिशन दे देगी कंपनी फॉर्म करने के लिए। ओके, एंड गाइज द प्राइवेट कंपनी कब से स्टार्ट हो जाएगी, व्हेन द प्राइवेट कंपनी गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो प्राइवेट कंपनी क्या हो सकती है, रन कर सकती है, मीन्स इस्टेब्लिश हो सकती है, अपना काम चालू कर, अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क परफॉर्म कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, देन ओनली द कंपनी वॉन्ट द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, इसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। बट इन द प्राइवेट कंपनी देयर हैज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कमेंसमेंट। अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो कंपनी कैन स्टार्ट हिज बिजनेस। ओके, तो ये क्या थे, ये प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स थे। एंड गाइज इन प्राइवेट कंपनी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी। एंड इट इज नेसेसरी टू यूज द प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के नाम के पीछे क्या होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड और पीवीटी लिमिटेड भी, पीवीटी लिमिटेड ये लिखा होना बहुत नेसेसरी है। ओके, so this is the private company. Now guys, see what is written. All the above said conditions should be fulfilled for a company to be called as a private company. Yes, जो भी कंडीशन ऊपर लिखी गई, जो भी मैंने बताया, वो सारी कंडीशन fulfilled by the company which called as the private company. If any one of the condition is not fulfilled by a company, it shall be considered as a public company. अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, इट विल बी कंसिडर अ पब्लिक कंपनी। ओके, इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम, एज आई टोल्ड यू कि प्राइवेट लिमिटेड और पीवीटी लिमिटेड शुड बी देयर। इट मतलब इट मस्ट, इट्स नेसेसरी। अ प्राइवेट कंपनी में बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। यस, प्राइवेट कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, मतलब इतने ही शेयर इशू करते हैं, उसका एक लिमिट होगा शेयर इशू करने का। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। ओके, ना गाइज नेक्स्ट वी विल सी द पब्लिक कंपनी। नाउ सी द पब्लिक कंपनी as per the Indian Companies Act, a public company is one which has the minimum paid up capital 5 लाख। कितना होना चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल, 5 लाख। प्राइवेट में कितना चाहिए था, 1 लाख। ओके, नाउ लेट्स सी what point has written there. The first point has no restriction on the transfer of its share. Yes,
प्राइवेट पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर फ्रीली, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर फ्रीली। मीन्स पब्लिक कंपनी हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या करने में, शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, बट द प्राइवेट कंपनी हैज़ द रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफ़र दी शेयर। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7, मिनिमम कितने मेंबर से कंपनी स्टार्ट हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड 7 मेंबर, बट प्राइवेट में कितने चाहिए थे, 2 मेंबर। अगर प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर मिल जाते हैं सो प्राइवेट कंपनी कैन इस्टेब्लिश, बट पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट विदाउट दी 7 मेंबर, दे हैज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ 7 मेंबर एंड मैक्सिमम नो लिमिट मीन्स infinite numbers of member can join the public limited company। इन्फिनिट मतलब कितने भी, कोई लिमिट नहीं है उसकी, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हैज़ टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल्स। इसके अलावा मिनिमम पेड अप कैपिटल मैंने बताया कि 5 लाख होना ही चाहिए, बट इसके अलावा आर्टिकल्स में जो भी प्रिस्क्राइब है, अगर आर्टिकल में कुछ और है तो वो भी होना फुलफिल है, वो भी फुलफिल होना चाहिए। 5 लाख की जगह जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ वो फुलफिल होना चाहिए वो कंडीशन। Fourth, does not prohibit any invitation or acceptance or deposit from the public। Yes, there has no restriction, there has no restriction to invite the public and subscribe share। पब्लिक कैपिटल को या फिर पब्लिक शेयर्स को इनवाइट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी कैन इशू देयर प्रॉस्पेक्टस इनटू द पब्लिक टू इशू देयर शेयर, अपने के शेयर को मार्केट में इशू कर रही है, ये एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रॉस्पेक्टस मार्केट में पब्लिक में इशू कर सकती है। मीन्स देयर हैज़ नो प्रोहिबिशन फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होता। ओके ना, मिनिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, 3, प्राइवेट में कितने होने चाहिए, 2। ओके ना गाइज, सी थर्ड पॉइंट, दी 1 पर्सन कंपनी। ना गाइज अभी देखो, हमने प्राइवेट पढ़ लिया, हमने पब्लिक पढ़ लिया ना, दिस इज़ अ 1 पर्सन कंपनी। ये क्या है गाइज, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये क्या एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो कब आया है, बाय द एक्ट 2013। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय कंपनीज एक्ट 2013, ये 2013 में आया है, इसके पहले ये नहीं था, इसके पहले सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ओनली देयर विल बी 2 कंपनीज, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, बट आफ्टर दी 2013 मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के थ्रू ये नया कॉन्सेप्ट आया है, ये कौन सा, 1 पर्सन कंपनी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द OPC। गाइज ऐसा क्यों किया कंपनी, ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, बिकॉज अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा चाहता था कि ही वांट टू स्टार्ट हिज बिजनेस, इफ़ एनी इंडिविजुअल वांट टू स्टार्ट हिज बिजनेस, सो गवर्नमेंट ने सोचा कि ही शुड गेट द परमिशन, उसको क्या मिलना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए। सो दैट्स वाई क्या किया उन्होंने, एक नया एक्ट बनाया फॉर द OPC कंपनी, मीन्स 1 पर्सन कंपनी, किसी इंडिविजुअल कंपनी के लिए, इंडिविजुअल पर्सन की कंपनी के लिए ये कंपनी, ये काइंड्स, ये टाइप्स बनाया गया है ना गाइज। इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या है मतलब एक तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बिकॉज सारे फीचर्स के प्राइवेट लिमिटेड के ही है। बस हाँ, प्राइवेट में क्या हो सकते हैं कि दो एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी देयर, बट इन 1 पर्सन कंपनी देयर रिक्वायरमेंट ओनली 1 member, मीन्स मिनिमम 1 and maximum 1 should be there। Okay, now see guys, what is the OPC? It is a private limited company and it has to fulfill the comply with all the formalities of the private company unless otherwise specified in act or rules। Yes, ये कैसी है, एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी फॉर्मेशन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, वो किसी एक्ट में लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन कोई भी एक OPC कंपनी को सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे प्रोसीजर फॉलो करने ही हैं। ओके, द कंसेप्ट ऑफ द 1 पर्सन कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013। यस, एज आई टोल्ड यू कि कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ये एक्ट, ये कंसेप्ट
सामने आया है, मतलब एग्जिस्टेंस में आया है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर हु हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। यस, इसको कौन चलाएगा? एक सिंगल प्रमोटर चलाएगा। एक मतलब मीन्स इट इज़ इस्टेब्लिश बाय द सिंगल प्रमोटर्स। ओके, एंड देयर हैव वन और, यहाँ पे क्या हो सकते हैं? एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक या एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। एंड ये एक ऐसी कंपनी में इट इज़ अ सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंटली क्या है? इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। ये दूसरी कंपनियों से क्या है? अलग है। वाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इन ओपीसी ओनली वन मेंबर। एक समय में इस ओपीसी कंपनी में सिर्फ एक मेंबर होएगा। दैट्स वाई दिस कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कंपनी। ओके, नाउ गाइस, अभी इसके एग्जिस्टेंस के टाइम में जो भी इसके मेंबर्स हैं, इट मस्ट बी एन इंडिविजुअल। जब तक इसका एग्जिस्टेंस चल रहा है, जब तक कंपनी चल रही है, सो द मेंबर ऑफ दिस कंपनी इट मस्ट बी एन इंडिविजुअल, ये एक ही होना चाहिए। एंड इट शुड बी ए इंडियन रेसिडेंस और इंडियन सिटीजन। क्या होना चाहिए? इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब कि जो भी कैलेंडर ईयर है, जो भी साल का मतलब एक साल में वो कितना 182 डेज क्या होना चाहिए? इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी द इंडियन रेजिडेंस। ओके, now guys, see what has written. The concept of one person company was introduced through the Companies Act 2013. Yes, Companies Act 2013 के थ्रू ये कंपनी सामने आई है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ सिंगल प्रमोटर। यस, आई टोल्ड यू द सिंगल प्रमोटर हु हैज़ द लिमिटेड लायबिलिटी। एक ऐसा प्रमोटर जिसकी लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड हो। इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये बहुत अच्छा फॉर्म है, कोई भी इंडिविजुअल इसको स्टार्ट कर सकता है। मतलब ये सिग्निफिकेंटली सारी कंपनियों से क्या है? डिफरेंट है ना। देन द सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है उससे जैसा ही है, बट उससे और अच्छा है। वाई? बिकॉज द सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है उसमें जो सोल ट्रेडर है उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है। बट इन दिस काइंड ऑफ द कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। इसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द company. Now, one person company can have one or more directors. There is no need to hold annual general meeting. Yes, there should be एक या एक से sorry, there must be there can be one or more director, मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। It may be, हो सकता है ये। And there has no need to conduct the annual general meeting, means the promoters of the company, जो भी ओनर है कंपनी का, it's no need to होल्ड और कंडक्ट जी AGM, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके गाइज, सो आई थिंक सो यू हैड अंडरस्टैंड वेल। नाउ गाइज, सी दे हैज़ गिवन द 3 other kinds of the companies on the basis of the members, on the basis of control and on the basis of types. Now guys, आज के लिए तो इतना ही। अभी आगे के जो भी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।